Assalamu alaikum. Dear students, today's lecture is going to be about morphological productivity. As you know very well that I have already uploaded two videos on morphological productivity, but the problem with those videos is that I have not shared the notes and the material with those videos, and that's why some students were requesting me to make a comprehensive video on morphological productivity. So let's start here. What is morphological productivity? First of all, as I have written in all my other notes, or you can say material, that I start with the definition. So productivity, morphological productivity, it is consists of two words. One is morphological and other is productivity. When you were in the first semester, you studied the design features of language that were given by Charles F. Hockett, and these design features of language like displacement, cultural transmission, duality, arbitrariness, and productivity or creativity, they distinguish human language from the animal communication system. So productivity was one of the features of that were given by Charles F. Hockett. Productivity means that language changes with regard to pronunciation, spellings, and with regard to vocabulary, and new words and new expression, they are also added in language. You can understand this very easily from the examples of Urdu, English, and our native language Punjabi. You can understand very well that the English that we speak are used in today's world. It is different from the kind of English that was used by Geoffrey Chaucer or Shakespeare or Milton, and even you can say even the class Alexander Pope, or you can say Victorian times. And the same is the case with Urdu, the same is the case with Punjabi. You know very well that the Punjabi that we speak today, it is different from the Punjabi that was spoken or used in the times of Waris Shah when he was writing the famous Punjabi romance Heer, and the same is the case with Urdu. So this is the productivity, and morphological productivity refers to the process used by native speakers in lexeme formation to form new lexemes. Please keep in mind that here we will be using the word lexeme instead of the word. हम वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लेक्जीम इस्तेमाल करेंगे. तो लेक्जीम वर्ड की जगह इस्तेमाल करेंगे. तो देखें लेक्जीम फॉर्मेशन के लिए वो प्रोसेस जो कि नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी. जैसे देखें अब वन एग्जांपल के अंदर एन ई डबल एस नेस है. नेस यू नो दैट दिस इज़ अ सोफिक्स, ठीक है, सोफिक्स है. तो इसको हम आमतौर पर नेस को लगाते हैं एडजेक्टिव के साथ और उसको हम नाउन में तब्दील करते हैं. जैसे देखें कि हैप्पी था और डार्क था. अब हैप्पी और डार्क के अंदर जब हम लगाते हैं ना कि हैप्पी है, हैप्पीनेस बन जाएगी, डार्क से डार्कनेस बन जाएगा, ठीक है. तो ये हमने एक नया बनाया. इसके बाद देखें कि ई एन जब हम लगाते हैं, आमतौर पे कुछ एडजेक्टिव के साथ लगाते हैं ई एन, तो वो उस एडजेक्टिव से वर्ब बन जाते हैं. जैसे शॉर्ट से शॉर्टन बन गया, इसके बाद देखें वीक से वीकन बन गया, ठीक है. ये हम अब क्या करें, मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी की एग्जांपल्स आपके सामने आ रही हैं. अब आगे देखते हैं प्रोडक्टिव अफिक्सेस एंड नॉन प्रोडक्टिव अफिक्सेस. आपने इस चीज़ को जानते हैं कि हम जब किसी अंग्रेज़ी ज़बान में या किसी भी ज़बान में जब हम नए लफ्ज़ बनाते हैं तो उसके मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं. ठीक है, एक उसमें अफिक्सेशन होता है. अफिक्सेशन का मतलब क्या होता है कि हम उसमें अफिक्सेस इस्तेमाल करते हैं. अफिक्सेस जब किसी लफ्ज़ से पहले इस्तेमाल हो तो उसे प्रीफिक्स कहा जाता है. किसी लफ्ज़ के आखिर पर इस्तेमाल हो तो उसे हम सुफिक्स कहते हैं, जिसे उर्दू में लाह के या साब के कहते हैं. अब इसको देखें कि लेकिन जो सारे जो अफिक्सेस होते हैं ना वो एक जैसे प्रोडक्टिव नहीं होते. कुछ प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ नॉन प्रोडक्टिव होते हैं. यानी प्रोडक्टिव वो होते हैं जो कि नेटिव स्पीकर इस्तेमाल करके उससे नए अल्फाज बनाते हैं, ठीक है. नॉन प्रोडक्टिव वो होते हैं जो नेटिव स्पीकर इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है. तो जैसे आपको सादा सी मिसाल में समझाने की अब कोशिश आपको करूँगा, ठीक है. जैसे देखिए लफ्ज़ है बुक लफ्ज़ है बुक, ठीक है. अब बुक का जमा जो होते हैं नेटिव स्पीकर क्या बनाएंगे, नेटिव स्पीकर उसके लिए ज़ाहिर है एस का सफिक्स ऐड करेंगे तो बुक्स बन जाएगा. लेकिन आपको पता है कि जब एक लफ्ज़ दूसरी ज़बान में आता है ना, दूसरी ज़बान के अंदर आ जाता है, तो हम उसकी जमा बनाने के लिए जो अपनी ज़बान का जो सीगा होता है ना जमा का, वो इस्तेमाल कर लेते हैं. जैसे मिसाल के तौर पे आप उर्दू में किताब से किताबें कहते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर लोग कह देते हैं बुक से बुकें लेके आना, ठीक है. लेकिन बुकें तो नहीं होगा ना, वो क्यों गलत होगा, क्योंकि उसकी वजह ये होगी क्योंकि नेटिव स्पीकर जो होता है वो इस तरह नहीं बनाते बल्कि एस से बनाते हैं. इस तरह नेटिव स्पीकर जब अंग्रेज़ होते हैं, अंग्रेज़ भी गलती कर जाते हैं ना. मतलब मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जलेबी, ठीक है, हम कहते हैं पकौड़ा, ठीक है. अब आपको पता है कि पकौड़ा की जमा पकौड़े होगी, जलेबी की जमा जलेबियाँ होंगी उर्दू के अंदर, ठीक है. लेकिन जब गोरे जो होते हैं, जब गोरे इन लफ्ज़ों को लेते हैं ना, तो वो जलेबी को जलेबीज़ कहते हैं, ठीक है. वो इसको पकौड़े को पकौड़ाज कहेंगे, पकौड़ा को पकौड़ाज.
तो ये एक प्रॉब्लम होता है इसका मतलब, इसलिए फिर वो प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है, तो वो जो नेटिव स्पीकर इस्तेमाल करते हैं ना वहाँ जमा जमा बनाने के लिए, लफ्ज़ों को तब्दील करने के लिए, उन वही इस्तेमाल होती हैं ना चीज़ें। अब जैसे देखिए प्रोडक्टिव फिक्सेस कौन से होते हैं, सुफिक्सेस जैसे नेस है और ई एन और ई आर है, ये देखिए बड़े प्रोडक्टिव है, ये इस इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जैसे हैप्पी से हैप्पीनेस बना, टीच से टीचर बन गया, शार्ट से शार्टन है, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुली हमने एडवर्ब बना दिया। ठीक है, तो ये प्रोडक्टिव फिक्सेस है। इसके बाद होता है एन ई टी एच। अब टी एच जो होता है ना, ये इंग्लिश में एक सुफिक्स है, ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। बहुत कम से मुराद है बहुत इक्का दुक्का लफ्ज़ हो गए शायद जिनके साथ ही इस्तेमाल होता हो। ठीक है, जिस किताब से मैं पढ़ रहा था उस पर उन्होंने यही दो लफ्ज़ लिखे हुए हैं, एक लफ्ज़ है वार्म और एक है टू, तो उसका वार्मथ बन गया, टू से टूट बन गया। अब आप इसमें देखें कि कितने कितने यानी फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, कि ये टी एच जो होता है वो हम बहुत ज़्यादा, ये नॉन प्रोडक्टिव है चूँकि बहुत कम इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो वो जो नेस है, जो ई आर है या ई एन है या एल वाई है, वो तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है। इसके बाद एक और नोशन होती है इसे कहते हैं मोर प्रोडक्टिव और लेस प्रोडक्टिव। अब देखिए सारे के सारे सुफिक्सेस जो होते हैं वो एक जैसे प्रोडक्टिव नहीं होते, बल्कि इनकी प्रोडक्टिविटी के रेशियो में फ़र्क होता है। ठीक है, कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव है, कुछ लेस प्रोडक्टिव होते हैं। ज़ाहिर है अब इससे नाम से बिल्कुल वाज़ेह है कि मोर प्रोडक्टिव वो होते हैं कि जिनको जो नेटिव स्पीकर ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और लेस प्रोडक्टिव वो होते हैं जिनको नेटिव स्पीकर करते हैं लेकिन कम करते हैं, यानी उनकी जो इस्तेमाल की जो निस्बत होती है, रेशियो होती है, उसके अंदर फ़र्क होता है। ठीक है, जैसे देखें अब ये हमने लिखा है कि मोर प्रोडक्टिव सफिक्सेस के अंदर ई एन आ रहा है। ठीक है, अब ई एन क्या होता है, आमतौर पे हम ई एन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव से नाउन बनाने के लिए, जैसे डार्क से डार्कनेस है, गुड से गुडनेस बन गया, इसके बाद हैप्पी से हैप्पीनेस बन गया। ठीक है, तो ये देखें ये नेस जो होता है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इस तरह देखें ई आर जो होता है, ई आर हम टीचर, ठीक है, टीच से टीचर, डू से डूअर, गिव से गिवर। ठीक है, तो ये हम बनाते हैं, तो ये ज़्यादा प्रोडक्टिव है। इसके बजाय जो आई टी वाई है ना, आई टी लेस प्रोडक्टिव है। आई टी वाई लेस प्रोडक्टिव इसलिए है चूँकि ज़रा कम इस्तेमाल करते हैं। नेटिव स्पीकर जो है वो आई टी को कम इस्तेमाल करते हैं नाउन्स बनाने के लिए, लेकिन जो एन ई डबल एस नेस को जो था ज़्यादा इस्तेमाल, जैसे मॉडर्न से मॉडर्निटी, प्योर से प्योरिटी। ठीक है, तो आई टी वाई की आपको बहुत कम मिसालें आपको मिलेंगी, यानी बहुत कम भी नहीं मिलेगी, यानी कम मिलेंगी, लेकिन एन ई डबल एस नेस की बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं मिल जाएंगी इंग्लिश के अंदर, लेकिन आई टी वाई की कम मिलेंगी। तो ये होता है मोर प्रोडक्टिव और लेस प्रोडक्टिव का काम। इसके बाद आगे देखना है कि फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, यानी वो क्या अवामिल होते हैं जो कि किसी ज़बान में मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के बायस बनते हैं। उसमें तीन फैक्टर्स होते हैं, एक ट्रांसपेरेंसी है, एक उसके अंदर होगा आगे आएगा दी फ्रीक्वेंसी ऑफ द बेस, और तीसरा आएगा यूजफुलनेस। तो ट्रांसपेरेंसी को देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी का देखिए उर्दू में मीनिंग भी आप समझ लीजिए शफाफ होता है, तो कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है इसका मतलब हम वाज़ह नज़र आती है, हम उसे बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो जो ट्रांसपेरेंट नहीं होती उसको समझ नहीं जाया जा सकता। देखिए वर्ड्स फॉर्म विद द ट्रांसपेरेंट प्रोसेस आर कंपोजिशनल द नॉन लेक्सिकलाइज्ड। ठीक है, इन लफ्ज़ों को हम समझना है कि ये जिन टर्म्स को मैंने हाईलाइट किया इनको अपने ध्यान फोकस करना है अपने, कि जो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के ज़रिए वर्ड बनते हैं ना वो कंपोजिशनल होते हैं, नॉन लेक्सिकलाइज्ड। अब दो टर्म्स आ गए हमारे सामने, एक कंपोजिशनैलिटी है और एक नॉन लेक्सिकलाइजेशन। इनका मीनिंग सेम है, बस टर्म्स का फ़र्क आपको आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है दैट द कम्प्लेक्स वर्ड कैन बी सेगमेंटेड, कि जो कम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं ना, आपने पढ़े हुए हैं कि सिंपल वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर एक मॉर्फीम होता है, इनको मोनोमॉर्फीमिक भी कहा जाता है, जिनके अंदर दो या दो से ज़्यादा मॉर्फीम्स होते हैं उसको हम पॉलीमॉर्फीमिक या कम्प्लेक्स वर्ड्स हम कहते हैं। ठीक है, तो कम्प्लेक्स वर्ड्स जो होते हैं वो कैन बी ईजिली सेगमेंटेड, यानी इनको हम क्या कर सकते हैं, सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। एंड देयर इज़ वन टू वन फॉर्म करिस्पोंडेंस बिटवीन फॉर्म एंड मीनिंग, और उसका जो फॉर्म और मीनिंग होता है उसके दरमियान भी एक वाज़ह जो होता है ना आपको, यानी एक करिस्पोंडेंट नज़र आएगी, यानी हारमोनी नज़र आएगी। यानी देखिए मिसाल के तौर पे, यानी पहली बात है कि देखिए हैप्पीनेस लफ्ज़ है। अब हैप्पीनेस जो होता है ना वो क्या है, वो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से बना है। कैसे बना है अब हम देखते हैं। वो कंपोजिशनल भी है। कंपोजिशनल कैसे है कि देखें हैप्पी और नेस, आप इन दोनों को जब तोड़ेंगे ना तो हैप्पी का मतलब ज़ाहिर है हैप्पी जो होता है एडजेक्टिव है। ठीक है, तो नेस लगाने से क्या होगा, नाउन बन जाएगा। तो हैप्पी और नेस का मीनिंग जब मिलाएंगे तो वो हैप्पीनेस ही बनेगा ना। इस तरह गुड से गुडनेस को अगर करेंगे, ये भी इसकी मिसाल होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं ऑन दी अदर है नॉन कंपोजिशनैलिटी और लेक्सिकलाइजेशन। देखिए दो टर्म्स आपस में अब मुतज़ाद आ रही हैं। ठीक है, कंपोजिशनैलिटी का उल्ट होता है नॉन कंपोजिशनैलिटी, नॉन लेक्सिकलाइजेशन का उल्ट होता है लेक्सिकलाइजेशन। ठीक है, तो दोनों के मीनिंग सेम है, आपने ऑलरेडी पढ़े हैं। ठीक है, दैट वर्ड्स कैन नॉट बी सेगमेंटेड। देखिए यानी नॉन लेक्सिकलाइजेशन या नॉन कंपोजिशनल वर्ड वो होते हैं
जिनको हम सेगमेंट में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, और जिनको अगर सेगमेंट में डिवाइड करने की कोशिश करें भी तो उनके जो मतलब वो जो सेगमेंट्स होते हैं वो उस का जो होल मीनिंग होता है वो पैदा नहीं करते। जैसे आगे मिसालों से वाज़ह चीज़ हो सकती है। जैसे देखिए कंपोजिशनैलिटी है, ये इसमें क्या होता है, ये नॉन लेक्सिकलाइजेशन। डार्कनेस है, डार्कनेस बिल्कुल डार्क और नेस को अगर मिलाए तो डार्कनेस ही बनता है। गुड और नेस को मिलाए तो गुड नेस ही बनेगा। टीच और ई आर को मिलाएंगे टीचर ही बनेगा। शार्ट और ई एन को मिलाएंगे शार्टन ही बनेगा, ठीक है। ये होते हैं कंपोजिशनैलिटी। इसके बाद देखें नॉन कंपोजिशनैलिटी अलग। अब आथर और आई टी वाई को मिलाएं तो क्या अथॉरिटी बनेगा? कभी भी नहीं बनेगा। देखें आथर का मतलब तो मुसन्निफ होता है, ठीक है, तो अथॉरिटी का मतलब तो बिल्कुल और हो गया। इसके बाद देखें कि लोकल है, लोकल और आई टी वाई का मतलब लोकेलिटी नहीं बनता, ठीक है। ओड और आई टी वाई का मतलब ओडिटी नहीं बनता, ठीक है। अब ये फ़र्क हो गया। अब दूसरा चीज़ आ गई इसके, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द बेस टाइप। यानी पहला जो फैक्टर था वो क्या था, ट्रांसपेरेंसी। दूसरा फैक्टर होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द बेस टाइप। फ्रीक्वेंसी ऑफ द बेस टाइप का मतलब ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द बेस टाइप रिफर्स टू द अवेलेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ द बेस टाइप टू विच वी कैन अटैच एंड अफिक्स टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। देखें आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ कि बेस क्या चीज़ होती है। बेस आपने पढ़ा, रूट होती है, रूट के साथ फिर बेस होती है, ठीक है। तो अब ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द बेस टाइप का मतलब ये होता है कि यानी जो हमारे पास किसी भी ज़बान में, उर्दू में, अंग्रेज़ी में अफिक्सेस मौजूद होता है तो उसके लिए बेसिस भी तो मौजूद होनी चाहिए ना। बेस हो गए तो तभी लगेगा ना। तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द बेस। अब कुछ बेसिस ज़्यादा इस्तेमाल होगी, कुछ बेसिस ज़्यादा कम इस्तेमाल होगी, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे उर्दू में हम कहते हैं कि ना, नून अलिफ ना जो होता है ये एक प्रीफिक्स है, सब का है, ठीक है। अब इस साबके को हमने किसी बेस के साथ लगाएंगे तो लफ्ज़ बनेगा ना। तो इसके हम कहें नामुमकिन, ठीक है ना, नामुकम्मल, ठीक है, इस तरह कहा जा सकता है ना। इस तरह देखिए लफ्ज़ है उर्दू में ला भी एक साबका है, तो हम कह सकते हैं कि ये ला हासिल, ठीक है ना, ला यानी। तो ये देखिए इस लिहाज से हमने क्या करते हैं कि हम उसकी जो बेस जो थे मौजूद होनी चाहिए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द बेस। अब जैसे देखें ई आर टू अटैच लगना था, अटैचमेंट लगा लिया, अटैच गलत लगा है, तो अटैच टू बेसिस, ठीक है, वर्ब टू फॉर्म। आमतौर पे हम जो था ना वर्ब के साथ जब ई आर लगाते हैं ना, वर्ब बेस, वर्ब जो बेस जो थे वर्ब होनी चाहिए, उसके साथ जब ई आर का सुफिक्स प्रीफिक्स फिक्स लगेगा तो उसका मतलब जो है वो काम करने वाला बात। जैसे टीच से टीचर है, पेंट से पेंटर है, गिव से गिवर, डू से डूअर, लर्न से लर्नर, ठीक है। लेकिन कुकर नहीं बन सकता क्योंकि रेस्ट्रिक्शन में तो है ना मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के अंदर, ठीक है ना। देखिए मिसाल के तौर पे अब आप उर्दू में कहते हैं नामुकम्मल, आप लामुकम्मल तो नहीं कहते। हम ला का मतलब भी तो मीनिंग उसका नेगेटिव है ना, लेकिन आप लामुकम्मल ने आप कहते हैं, नामुकम्मल आप कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसके रेस्ट्रिक्शन भी होती हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। अब देखिए आगे होता है ई एस क्यू ई, ठीक है। ई एस क्यू ई देखिए माउंट एस्क है, काफका एस्क है, बाइडन एस्क है, लेकिन ट्रम्प एस्क नहीं है, ठीक है। ये ऐसे है कि जैसे उर्दू में नामुकम्मल तो है लेकिन लामुकम्मल नहीं है, ठीक है। अब चूँकि लैंग्वेज आर्बिट्ररी होती है, इस चीज़ से आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं, ठीक है। तो इसमें देखें ये मोर प्रोडक्ट लेस प्रोडक्ट। इसके बाद यूज़फुलनेस होता है। यूज़फुलनेस का मतलब होता है, देखिए पहले भी हमने देखा कि ज़ुबान में तब्दीलियाँ आती हैं। ज़ुबान में यानी जब सोसाइटी तब्दील होती है ज़ुबान तब्दील होती है, या जब ज़ुबान तब्दील होती है सोसाइटी तब्दील होती है। ये असल में सोशियो लिंग्विस्टिक के अंदर एक टॉपिक आएगा। एक होता है सोशियो लिंग्विस्टिक्स, एक होता है सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज। यानी ये इस सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज इसके अंदर ये डिस्कस किया जाता है कि जब सोसाइटी तब्दील होती है तो ज़ुबान तब्दील होती है, ठीक है। सोशियो लिंग्विस्टिक्स के अंदर ये टॉपिक्स हैं, आप 5वें सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो ये देखें कि अ प्रोसेस ऑफ लेक्सिम फॉर्मेशन इज़ यूजफुल टू द एक्सटेंट दैट द स्पीकर्स ऑफ अ लैंग्वेज यूज न्यू वर्ड्स आर ऑफ पर्टिकुलर सोल्ट, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे देखें ये स्टूवर्ड लफ्ज़ है। अगर हमें यानी पहले ज़माने में इस्तेमाल होता था, पहले जो लोग करते थे ना कि स्टूवर्ड जो था वो मेल को कहा जाता था, स्टूवर्डेस जो था फीमेल है, ठीक है। मर्डर और मर्डरेस है, आथर है आथरेस है, एक्टर और एक्ट्रेस है, ठीक है। इसके बाद आप देखें पोइट और पोइटेस है। लेकिन अब जो होता है ना, अब चूँकि आज की जो अंग्रेज़ी बोलने वाले जो लोग होते हैं ना, वो पोइट को दोनों के लिए यूज़ करते हैं। यानी पोइट का मतलब मेल भी है फीमेल भी है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि यानी जॉन मिल्टन वाज अ पोइट, तो हम ये कहते हैं एमिली डिकिंसन वाज अ पोइट। हम ये मतलब आमतौर पे कम इस्तेमाल होगा कि एमिली डिकिंसन वाज अ पोइटेस, ठीक है। इस तरह हम अगर कहते हैं कि यानी एक्टर है तो एक्ट्रेस है। अब आमतौर पे ये जो होता है ना मेल और फीमेल के चूँकि डिफरेंसेस को ख़त्म हो रहे हैं ना लैंग्वेज के ज़रिए, ठीक है। तो ये होता है। अब इसके बाद है कि मैन काइंड। अब मैन काइंड से ह्यूमन काइंड क्यों बना, ठीक है। चूँकि ज़रूरत पेश आ गई। ज़रूरत इसलिए पेश आ गई क्योंकि पहले मैन काइंड इस्तेमाल किया जाता था। आपको पता है कि मुआशरा जो होता है उसमें पैट्रियार्की होती है या मैट्रियार्की होती है। पेट्रियार्की वो सोसाइटी होती है जिसके अंदर मेल डोमिनेंस होता है, मैट्रियार्की में फीमेल डोमिनेंस होता है। तो ज़ाहिर है सोसाइटी जो था ना ज़्यादातर पेट्रियार्की रही है शुरू से। अगर हम पुरानी सोसाइटीज़ का भी अगर एवोल्यूशन का मुतालिया करें
तो ज़्यादा सोसाइटी के अंदर पेट्रियार्की, तो पेट्रियार्की के अंदर ज़ाहिर है जहाँ मेल डोमिनेंस होगा तो जो टर्म्स होगी उसके अंदर भी मेल्स का गलबा नज़र आएगा, ठीक है, इल्म के ऊपर थाट के ऊपर मेल्स का गलबा नज़र आएगा। लेकिन जब मगरिब के अंदर ये जो तहरीकें शुरू हुई ना, जिनको फेमिनिज़म कहते हैं, उसकी मुख्तलिफ मूवमेंट है, फर्स्ट वेव है, सेकंड वेव है, थर्ड वेव है, तो उन्होंने फिर ये भी सवाल उठाया कि जो ज़बान है ना, ज़बान इनहेरेंटली वो मेल सेंटर्ड क्यों है, ठीक है, यानी उसके अंदर फीमेल की रिप्रेजेंटेशन नज़र नहीं आ रही। तो जब हम मैन काइंड कहते हैं तो वो जो फेमिनिस्ट हैं उन्होंने इस पर एतराज़ किया, तो ये तो गलत लफ्ज़ है ना, इसके लिए हमें ह्यूमन काइंड यूज़ करना चाहिए, तो इसलिए आजकल वो ह्यूमैनिटी या ह्यूमन काइंड इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तब्दीलियाँ आती हैं ज़बान के अंदर, ठीक है। इस तरह देखें ना कि इस तरह का ज़बान में देखें कि वो जो प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ना कि यानी एवरीबॉडी शुड डू हिज वर्क, हम आम पहले कहते थे, लेकिन अब हम कहते हैं एवरीबॉडी शुड डू देयर वर्क। हालांकि एवरीबॉडी के साथ देयर तो नहीं लगना चाहिए ना, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ज़ुबान की तब्दीली की वजह से हम जेंडर सेग्रीगेशन नहीं कर रहे, तो हम इसलिए उसका देयर लगा रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम होता है। इसके बाद आगे आता है रेस्ट्रिक्शन ऑन मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। ये रेस्ट्रिक्शंस कैटेगोरिकल होती है, कैटेगोरिकल का मतलब बिल्कुल वाज़ेह है। जैसे देखिए अब हाल जो अफिक्सेस होते हैं ना वो ख़ास किस्म की बेस के साथ इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे ITY जो होता है, अब ITY हमेशा एडजेक्टिव्स के साथ इस्तेमाल होगा ना, ठीक है। अब ITY को जैसे प्योर से प्योरिटी बना लिया, मॉडर्न से मॉडर्निटी बना दिया, अब ITY को हम नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। एक IZE को जो होता है हम नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, या एडजेक्टिव के साथ करेंगे। अब IZE को हम जो होता है वो उसको दूसरे लफ्ज़ों के साथ इस्तेमाल नहीं कर, जैसे रियल से रियलाइज़ बना दिया, सिंपथी से सिंपथाइज़ बना दिया। अब अन जो होता है वो हमेशा जो होता है वो एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल, जैसे अननाउन है, अनडू है, अनइम्पोर्टेंट है, ठीक है, या वर्ब के साथ इस्तेमाल होगा। इसके बाद है फोनोलॉजिकल रेस्ट्रिक्शन। फोनोलॉजिकल का मतलब फोनोलॉजी जो होता है वो रेस्ट्रिक्शन में क्या किरदार अदा करती है, ठीक है। कहते हैं कुछ फिक्सेस जो होते हैं, जैसे देखें कि IZE ये मैंने लिखा है, IZE जो होता है, ठीक है। अब IZE प्रीफर्स नाउन दैन एडजेक्टिव दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सिलेबल्स, ठीक है, वेयर द फाइनल सिलेबल डज नॉट बेयर प्राइमरी स्ट्रेस। यानी कहता है कि जब 2 सिलेबल हो ना, ठीक है, 2 सिलेबल वाला वर्ड और उसके अंदर फाइनल सिलेबल पर जब स्ट्रेस ना करे तो उसके साथ IZE लगेगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो नहीं लगेगा। चूँकि ये ज़ाहिर मैं जहाँ से ये पॉइंट्स लिए हैं वो माहिर लिसानियात है, बड़ी यानी इंटरनेशनल कुतब है, तो उन्होंने ये चीज़ के तहत बात करके बताए हैं। तो आगे देखते हैं, आगे देखें कि ये सुफिक्स है ना EN जो होता है। अब EN हम आमतौर पे एडजेक्टिव के साथ लगाते हैं उसको वर्ब बनाने, जैसे हमने शार्ट से शार्टन बनाया, डार्क से डार्कन बनाया, हमने वीक से वीकन बनाया, ठीक है। तो कहते हैं विच फॉर्म वर्ब्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स अटैच ओनली टू द बेसिस दैट एंड इन ऑब्स्ट्रेंट्स, ठीक है। ऑब्स्ट्रेंट्स आपने पढ़े हुए हैं फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी के अंदर कि वो स्टॉप, फ्रिकेटिव और एफ्रिकेट्स होते हैं, इसके उल्ट सोनोडेंट्स होता है। तो कहते हैं ये जो EN होता है ना सिर्फ ऑब्स्ट्रेंट्स जो होता है उनके बाद लगता है, ठीक है, सोनोडेंट के बाद नहीं लगता। जैसे देखिए हम लफ्ज़ कह सकते हैं, डार्कन कह सकते हैं, ब्राइटन कह सकते हैं, हम इसको डेफन कह सकते हैं, लेकिन स्लिमन या टालन हम नहीं कह सकते, यानी इसके ऊपर फोनोलॉजिकल रेस्ट्रिक्शन अप्लाई होंगे। इसके बाद ये होता है सिमांटिक रेस्ट्रिक्शन होती है, जैसे मीनिंग ऑफ द बेस। अब देखिए बाज़ बेसिस होती हैं, बाज़ बेस ऐसे जिनके अंदर ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग पाया जाता है, तो उसके अंदर अन का जो मीनिंग होता है वो लगाने से वो तो बहुत गलत हो जाए। जैसे देखिए आप अनहैप्पी तो कह सकते हैं, क्योंकि हैप्पी पॉजिटिव है और अनहैप्पी बात, लेकिन अनसैड आप नहीं कह सकते, ठीक है। आप इसको अगली कह सकते हैं लेकिन अगली के साथ अनअगली नहीं कह सकते, तो ये भी एक रेस्ट्रिक्शन होगी। इसके बाद एटिमोलॉजिकल रेस्ट्रिक्शन। एटिमोलॉजी का मतलब ये होता है ना कि अल्फाज का जो ओरिजिन होता है, वर्ड का जो माहज़ होता है, लफ्ज़ निकला कहाँ से है, उसके बारे में होती है बात। तो एटिमोलॉजिकल रेस्ट्रिक्शन ये जो सम फिक्सेस आर रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर सब क्लास ऑफ बेसिस, ठीक है। फॉर एग्जांपल देयर आर, अब देखिए कुछ जो फिक्सेस होते हैं ना, जैसे देखें ये उन्होंने लिखा हुआ है कि EN जो होता है, EN कहाँ लगता है, वो कहते हैं जो जर्मैनिक लैंग्वेजेस होती हैं ना, जर्मैनिक लैंग्वेज, अब इसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर वो लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो जर्मैनिक लैंग्वेज आप सर्च करके आप इसको देख लेना, तो जर्मैनिक लैंग्वेज के बाद ही जो होता है ना आमतौर पर वो जो लफ्ज़ जिनका ओरिजिन जर्मैनिक होता है ना उनके बाद लग, जैसे वुडन है, वैक्सन है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते, ये जो आगे लिखा मेल्टन नहीं हम कह, कार्बन हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं एटिमोलॉजिकल रेस्ट्रिक्शन होते हैं, ये आगे लिखा भी हुआ है, ये IC का भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, इसको भी देखें। इसके बाद सिंटैक्टिक रेस्ट्रिक्शन देखिए, अब कुछ लफ्ज़ होते हैं ना, जैसे देखें सिंटैक्स के अंदर, जैसे देखें एबल है। अब एबल जो होता है ना आमतौर पे हम वर्ब के साथ लगाते हैं, उसके साथ नाउन हम बनाते हैं, सॉरी एडजेक्टिव बना दिया। जैसे देखिए लव लफ्ज़ से लव से लवेबल बना दिया, एडोर से एडोरेबल हमने बना दिया, ठीक है, रीड से रीडेबल बना दिया। इसमें वो ये बताने की कोशिश की है उन राइटर्स ने, वो कहते हैं कि जो लफ्ज़ ट्रांजिटिव होते हैं ना, ठीक है, तो उनके साथ ही हम क्या करते हैं, हम उनके साथ एबल लगाते हैं, इन ट्रांजिटिव के साथ नहीं लगाते। जैसे देखिए लफ्ज़ उन्होंने एंड पे एग्जाम्पल दिया है कि स्नोरेबल, ये अब गलत हो जाएगा ना, ठीक है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जिन लफ्ज़ों जो लफ्ज़ ट्रांजिटिव हो, जिनको पैसे वाइज किया जा सके, पैसे में तब्दील किया जा सके, उनके साथ ही हम एबल लगा सकते, जैसे लवेबल, रीडेबल,
ठीक है, क्योंकि लव जो होता है एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिससे एक ऑब्जेक्टिव हुआ, तो इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हम ये नहीं लिखा सकते, ये एक प्रॉब्लम होता है। अब आगे अगली टर्म आती है, लास्ट टर्म है, इसका कहते हैं हैव्स लाइक बीन ऑन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि कोई ज़बान के अंदर किसी खास कॉन्टेक्स्ट में एक लफ्ज़ जो होता है ना, जब एक ही बार इस्तेमाल हो उसे हैव्स लाइक बीन ऑन कहते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं हैव्स लाइक बीन ऑन इज़ अ टर्म यूज इन लिंग्विस्टिक्स टू रेफर टू अ वर्ड और एक्सप्रेशन दैट अकर्स ओनली वंस, ठीक है, विद इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये देखिए, अब इसकी मिसाल आगे ले लेते हैं। इसके एग्जांपल से लिखा है कि एन एग्जांपल ऑफ हैव्स लाइक बीन ऑन, ठीक है, इन इंग्लिश लिटरेचर इज़ द वर्ड, ठीक है, सेस्क्वीपेडियन, ठीक है। ये लफ्ज़ है जी शेक्सपियर का प्ले है लव्स लेबल लास्ट, तो ये यानी इसके बाद इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है, यानी इसी कॉन्टेक्स्ट में हुआ, तो इसे कहते हैं हैव्स लाइक बीन ऑन, जब एक लफ्ज़ एक ही कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो, ठीक है। ये आगे एग्जांपल भी दी हुई है, ठीक है। अब जैसे देखिए एग्जांपल आगे लिखी हुई है ना, ठीक है, द क्लाउन विद अदर्स स्वोर, ठीक है, टू ओथ्स टू मी, ये इतनी लंबी मतलब लिखी हुई है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हैव्स लाइक बीन ऑन। तो यानी इन टुडेज लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी, देन व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, देन द नोशन ऑफ मोर प्रोडक्टिव अफिक्सेस एंड नॉन प्रोडक्टिव अफिक्सेस, देन वी हैव डिस्कस्ड less productive affixes and more productive affixes, then we discussed factors contributing to the morphological productivity. I have explained 3 factors, and then we discussed restrictions on morphological productivity. And अगर आप इस लेक्चर को सही तरीके से आप कर लेंगे तो आपकी इंशाल्लाह ये चीज़ें काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगी। लेकिन चूँकि ज़ाहिर है इल्म कभी ख़त्म नहीं होता, तो ये मॉर्फोलॉजी के ऊपर, मॉर्फोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के ऊपर तो पूरी की पूरी किताबें मौजूद हैं, एक एक मतलब एक किताब पूरी की पूरी जो होता है ना, मैंने अभी मैं देख रहा था उससे मौजूद है। तो फिर इसके, लेकिन ये लेक्चर आपको इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको इस काबिल लाजमी करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे इस हवाले से कि आप इसके बाद फिर अगर अच्छी अच्छी किताब का मुताला करेंगे आपने ऑन के ऊपर, तो बहुत अच्छी बात होगी। थैंक यू सो मच।